Hello my dear students, welcome to my YouTube channel PhD in Digital Maths. Today we are going to solve the section C of the sample paper 4 and you will get the PDF of the same sample paper in the description box. यहाँ पे अगर उतना visible नहीं है, you can go and see the PDF. You can refer that PDF. Okay. So without wasting time, चलो हम लोग शुरू करते हैं section C का first question, that is 45 question. सेक्शन सी में 2 केस स्टडीज रहते हैं एंड 8 मार्क्स का दैट सेक्शन कंटेन्स 8 मार्क्स. आई थिंक यू नीड टू कंप्लीट 4 क्वेश्चंस और yes 8 questions. Any 8 questions are attempted. So first question is 41 question. So read the case study. St. Francis is organizing their annual feast. They want to give cash prized along with the memento to their best students. 4 identical moments are made by the school to award students for 4 values, that is honesty, punctuality, cleanliness and non-violence. Each memento is made as shown in the figure. This is the figure. आपको यहाँ पे जैसे फिगर दिया है मोमेंटो वैसे बनाया गया है एंड द पार्ट PQRS इज द सिल्वर प्लेटेड. PQRS, this one PQRS, the shaded part is the silver plated. The rate of the silver plating is ₹2 per meter square. उतना इंफॉर्मेशन दिया है एंड रेडियस OR is given 7 centimeter. Question number 41. What is the area of the quadrant OSRO? This one. आपको जो दिख रहा है मैं रेड कलर का डॉट कर रही हूँ वो है आपका क्वाड्रेंट. वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. सो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. क्वाड्रेंट दैट मीन्स 1/4 part of the circle. So area of quadrant is pi r square upon 4, that is 22/7 into 4 multiplied by r is given 7 into 7. So simplify करते हैं. 7 2 2s are 2 11s are, so 77/2 आया है. So we will take the decimal, we will convert into decimal. 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 5s are 38.5 cm square. Option B is the correct option. क्वेश्चन नंबर 42. इवैल्यूएट द एरिया ऑफ द POQ. POQ कौन सा ट्राइंगल है? ऑलरेडी दिया है. सेंटर का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. सो ट्राइंगल POQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है. सो एरिया ऑफ द POQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस into height. So here half multiplied by OQ into OP, OP into OQ. Now what is the value of OP? OP का value क्या है? यहाँ OS 7 and this is 3. तो 7 plus 3 करेंगे तो you will get 10. So half multiplied by 10 multiplied by 10, 2 5s are, so 50 centimeter, right? cm square. Option C is the correct option. Question number 43. What is the total cost of silver plating the part PQRS? Okay, PQRS का सिल्वर प्लेटिंग का पार्ट ये कैसे निकलेगा? ये एरिया कैसे निकलेगा? When we subtract the area of the quadrant from the triangle, then we will get the silver plating area. So first 41 और 42 में तो हमारे 2 आंसर्स मिल गए. So वहीं से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 43 के लिए. 43 is area of triangle
POQ minus area of quadrant OSRO, राइट? अभी ट्रायंगल से क्वाड्रेंट माइनस करेंगे तो आपको सिल्वर प्लेटिंग का एरिया मिल जाएगा. सो 50 minus 38.5. 50 minus 38.5. So here we will get 11.5 cm square. 11.5 cm square. But what is the cost? Cost क्या है? Already दिया है. The rate of the silver plating is ₹20 per meter square. Okay, ₹20 per meter square. Chalo, let's convert this into sorry, we will multiply with 20 rupees because we need the amount. Okay, total cost is ये आई थिंक क्वेश्चन में चिल्ड्रन गलत दिया है, 20 पर मीटर स्क्वायर दिया है. आई थिंक दिस शुड बी सीएम स्क्वायर बिकॉज हमारा जो एरिया निकला है वो सीएम में निकला है. अगर एरिया सीएम में निकला है, हमारा कॉस्ट 20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगेन वी नीड टू कन्वर्ट सीएम इनटू मीटर. बट इफ वी आर कन्वर्टिंग, ऑप्शंस में नहीं है. सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे के करो, समटाइम्स क्वेश्चन भी मिस्टेक रहते हैं. अगर यहाँ पे आप सीएम टू मीटर को कन्वर्ट कर दोगे तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा. सो 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आ रहा है. 11.5 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 230 रुपीज आएगा. ओके, यहाँ पे तो फिर ऑप्शन बी आ रहा है. अगर मीटर पे कन्वर्ट करोगे 11.5 अगेन डिवाइडेड बाय मीटर, यस डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा. So that when at that time you will get 0.115. So इसे मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर नहीं आएगा. 0.115 into 20 करेंगे तो 2.3 आएगा. So hopefully question में C missing है. So correct answer is 230. Question number 44. Calculate the area of the major sector in the figure. Okay, major sector क्या होता है? Area of the circle minus area of the minor sector. Area of the circle, area of circle minus area of minor sector. So area of circle pi r square minus area of minor sector, that is 1/4 pi r square. ये क्वाड्रेंट का जो है वही है. सो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ 1/4 pi r square. आफ्टर दैट वी विल टेक कॉमन pi r square कॉमन ले लेना. सो यहाँ पे 1 minus 1/4, that means 3/4 pi r square. Now put all the values here. 3/4 multiply by 22/7 multiply by 7 multiply by 7. Simplify this, 11. So here you will get 33 into 7/2. So your answer will be 115.5 cm square. Option D. What is the length of arc SR? चलो ये क्लियर करते हैं. लेंथ ऑफ आर्क SR. SR का लेंथ क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला डालना पड़ेगा. θ/360 into 2 pi r is our formula. 45 question. Length of arc θ/360 into 2 pi r. So arc क्या है? SR है, right? So theta is here 90 degree. So 90/360 into 2 multiply by 22/7 multiply by r. चलो simplify करते हैं. 9 1s are 9 4s are again 2 1s are 2 2s are 11. So here you will get 11 centimeter. Correct option is option
बी। फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। सो यहाँ पे केस स्टडी में एक्चुअली क्या है चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली लिंक अप करता है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख के मुझे नहीं आ रहा है मैं छोड़ दूंगा करके आप सोचोगे, तो व्हाट हैपेंड, 43 जब करोगे अगेन 41 आपको सॉल्व करना ही है। 41 करेंगे तो वहां पे जो क्वाड्रेंट का एरिया था वो हमें लगा 43 में। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल। तो 45 कहीं पे आपको लिंक दिख रहा है तो वो सॉल्व करना ही है आपको। ओके ओके, सेकंड केस स्टडी 46 से 50 क्वेश्चन तक रहता है। वी विल स्टार्ट नाउ 46 क्वेश्चन। Rajesh has a field which is in the shape of a right angle triangle. This is a right angle triangle, already दिया है. The perpendicular and the base are 144 meter and 84 meter. Okay, this is उल्टा लेते हैं. This is 144, this is 84 लेते हैं. Then he wants to leave a space in the form of a square of largest size inside the field for growing wheat and then the remaining for the vegetables. So राजेश को क्या करना है, उसे एक स्क्वायर शेप का जगह उसे छोड़ के बाकी के जगह पे उसे वेजिटेबल्स करना है और स्क्वायर शेप में उसे करना है वीट। तो चलो अभी हम लोग अंदर एक स्क्वायर शेप बना देते हैं। दिस इज द स्क्वायर शेप, हो गया। तो यहाँ पे उसे करना है वीट का। सो राइट डाउन ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस टेक दिस डी एंड ई, दिस विल बी आवर एफ। सो यहाँ से यहाँ तक 144, BC is equal to 84. Okay, we will go and see the first question. Which among the following is the correct criterion of similarity? Similarity के criteria कौन सा वाला? Sorry, incorrect, not correct, incorrect. Which is the incorrect criteria? That means similarity के criteria में नहीं आता है. जो नहीं आता है that is ASA. एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं. डन. 46 ASA सिमिलरिटी के क्राइटेरिया देखोगे तो उसमें ASA नहीं है. 47 क्वेश्चन. इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. सो ऑलरेडी हमने किया है. D और E पैरेलल टू BC. Then the other two sides are divided into same ratio. That means midpoint है. अगर same ratio है, so D is also midpoint, E is also midpoint. Then identify the theorem. Midpoint का क्या है? BPT. BPT को Thales theorem भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Thales theorem. So this is BPT और Thales theorem. Okay. BPT और Thales theorem हो गया 46 and 47. Now 48, but हमें वो फिगर चाहिए, so I am not removing that figure. कैलकुलेशन के लिए अभी हमें वो फिगर चाहिए. 48 question. What is the length of the side of the squared space? So DE or else BD or else FB or else EF, कोई भी एक मिला तो हमें हो गया. Okay, now first step is consider triangle ADE and triangle EFC. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंसिडर करो. सॉरी, AED एंड EFC को कंसिडर अगर करेंगे, ED इज पैरेलल टू BC. अगर ये पैरेलल हुआ, सो E एंगल इज इक्वल टू C एंगल, AED इज इक्वल टू ACB, corresponding angles. Then A is the common, A common है,
then B 90 degree and DE is also 90 degree. Again corresponding angles because DE is parallel to BC. So from which criteria ADE is similar to EFC, angle angle angle, ट्रिपल ए, एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। डन। मैंने यहीं पे सिमिलरिटी आपको एक्सप्लेन किया बिकॉज इतना हमने लिखने की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फिगर में ही कैलकुलेशन करना है। एमसीक्यू है चिल्ड्रन, रिपीटेडली आई एम टेलिंग डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज आपके पास मैथ्स के लिए बहुत कम टाइम रहता है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट, अगर हो गया सिमिलर देन रेशियो ऑल्सो प्रोपोर्शन करना है। सो राइट डाउन हियर AD अपन AB is equal to DE upon BC. Done. But we don't know the value of AD, right? Or we don't know the value of DE. So what we will do, we will take DB as X. DB को क्या लेना है आपको? X लेना है। अगर DB X है तो AD कितना होगा? DB is equal to X, then AD is equal to 144 minus X. Am I right? ये टोटल 144 है, DB X लिया है तो AD कितना होगा? 144 minus X. अभी DB X है तो DE भी X. So now we will put the values here. AD की जगह पे 144 minus X अपन 144 is equal to X अपन BC is 84. Now 144 into 84 minus 84X is equal to 144X. तो 144 into 84 करेंगे तो 2, सॉरी दिस इज नॉट 2, ये बाद में हम लोग सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ये माइनस 84 उधर जाके प्लस 84 होगा, देन यू विल गेट 228x, 228x. So 144 into 84 upon 228 is equal to x. After simplification, you will get 53.05 meter. 53.05 meter, that is option B. हो गया? ये कैलकुलेशन आप पहले सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हो जाएगा, 2 से पहले करोगे, so you will get 53.05. Now question number 49. चलो ये इरेज कर रही हूँ। एट 49 क्वेश्चन को भी 49 क्वेश्चन भी 48 को रिलेट करके रहता है चिल्ड्रन। सो देखते हैं अभी क्या है क्वेश्चन। What is the area of the square field? What I said, अगर एक केस स्टडी में एक के साथ एक हर एक रिलेटेड है। एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो साइड हमने फाइंड आउट किया है अभी 53.05 into 53.05. So here you will get 2814.30 m square. ऑप्शन इज, मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके रखा था चिल्ड्रन, बिकॉज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कैसे करना है सब दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लेंदी होगा। सो ये जो बड़े बड़े कैलकुलेशन है ऑलरेडी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 2814.30 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, अभी हो गया 49 भी। 50 क्वेश्चन,
Evaluate the area of the remaining field other than the square field. अच्छा, स्क्वायर फील्ड का एरिया हमारे पास है, रिमेनिंग फील्ड मतलब ये वाला. अभी मैं आपको ना, ये देखो, ये लाइंस में बना रही हूँ, ये और ये. सो इससे हमें ये कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ स्क्वायर DEFB, राइट. सो एरिया ऑफ द ABC ये हमारे पास है ऑलरेडी, हमने क्वेश्चन नंबर 49 में फाइंड आउट किया है. एरिया ऑफ द ABC हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस 84 मल्टीप्लाइड बाय 144 माइनस 2814.30. एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने 49 क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे. So here you will get 6048 minus 2814.30. So final answer 3233.7 meters square. Option D 3233.7 meter square. ये आपका करेक्ट आंसर है. यहाँ पे भी मैं ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रही हूँ, बहुत ही लेंदी हो जाएगा. ओके, डन. सेक्शन सी ऑल्सो ओवर. इसको रिगार्डिंग कोई डाउट है देन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड एक वीडियो में पूरा सैंपल पेपर मैं कर दूंगी तो बहुत ही बड़ा वीडियो होगा और आपको भी बोर लगेगा. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सेक्शन वाइज. एंड डोंट वरी चिल्ड्रन, डेफिनेटली विद इन द 4th of the December I am assuring that you will complete all the sample papers because जैसे हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली जितने सैंपल पेपर्स है आप लोग कंप्लीट कर पाओगे. सो होप सो यू आर प्रैक्टिसिंग अलोंग विथ मी ओनली, तभी जाके हो पाएगा. अभी हमने सैंपल पेपर कंप्लीट कौन सा किए हैं? 4 कर चुके हैं. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर सैंपल पेपर 5. सो डू प्रैक्टिस and do regular practice. That should be need for you because regular practice से ही आपको easy जाएगा. Let's see. And this question paper, the PDF of this sample paper you will get in the description box. So thank you. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है so please do like, share and subscribe my YouTube channel PhD Digital Maths. एंड शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो चिल्ड्रन, तभी जाके दूसरे बच्चों के पास जाएगा. एंड वी कैन गो फॉर अ लाइव सेशन ऑल्सो. I will try, if I will get that much of response then definitely I will go for a live session for the last 2 sample papers. So हम लोग live session ही solve करेंगे. Okay, thank you very much for watching my videos. See you in the next session. Bye bye.